Bismillah Rahman Rahim. In this fast track session, I will quickly cover the most important topics of the Computer Science PBA exam. In few sessions, you will learn important JavaScript programs, HTML and CSS web page design, flowchart, concept map, and basic hardware and software concepts. If you practice these topics carefully, you can score good marks in the PBA exam. So let's start our first topic, that is JavaScript basics. Learn smart. I will cover important questions only and score better. What we will cover in this video: fast track plan for today, brief introduction to the PBA paper patterns, why section A is important for scoring, JavaScript basic needed for PBA, important exam style examples, debugging practice, and final quick recap. This is your thing. This is a quick learning session, so we will move to practical content immediately instead of spending too much time on theory. What is PBA? PBA stands for Practical Based Assessment. It checks practical understanding of computer science. Students are expected to solve application-based questions. The paper focuses on skills such as programming. आपको क्या क्या चीजें इसमें PBA में कवर करना होगी? Programming, web page design, flowcharts, and applied tasks. Remember, in PBA, students score better when they know the format, logic, and standard question style. Paper structure, you must remember total marks equal to 40, section A, total 24 marks, section B, 16 marks. Section A includes JavaScript, HTML, and CSS. Section B includes flowchart, concept map, hardware, software, and business plan. Smart strategy. Since section A carries more marks, students should begin with the most important JavaScript questions types first. This is my recommendation, my advice to you. You will start first section A. Section A learning starts here. JavaScript is one of the most important scoring areas in PBA. Many questions are based on simple logics. If students learn the structure of basic programs, they can solve many variations. Today we will cover the foundations needed for quick success. Today we will focus on input, output, variables, conditions, loops, and common PBA question types. Important concept for PBA, variables. वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स आपको पता है कि एक ऐसे मेमोरी स्पेस होती है जिनको हम नाम देने को वेरिएबल कहते हैं और इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं और दीज वैल्यूज कैन बी चेंज. टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर से इनपुट हम कैसे लेते हैं? डिस्प्लेइंग द आउटपुट, अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर, if else statement, for loop, debugging simple errors. These are the important concepts of PBA. How to take input and display output. Do you know? Suppose I have written let num equal to parse int, prompt enter a number. हम prompt के थ्रू यूजर से इनपुट लेते हैं. कौन सा फंक्शन? prompt. लेकिन parse int क्यों लिखती है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इनपुट होती है. अगर हमने नेम लेना हो तो फिर हम parse int नहीं लिखेंगे. We will use only prompt enter the name. याद रखिएगा, स्ट्रिंग के लिए आप जस्ट prompt यूज करेंगे, लेकिन इंटीजर के लिए you have to parse int. You have to use this function parse int. Let num equal to, आपने वेरिएबल के साथ let लाजमी लगाना है. document.write ये क्या करेगा? num को प्रिंट कर देगा. Prompt is used to take input from the user. Parse int converts the input into an integer value. Document.write display the result on the screen. And exam tip. In many questions, students lose marks because they forgot to convert input into integer. वो क्यों मार्क्स लॉस कर देते हैं? क्योंकि वो कन्वर्ट नहीं करते
इंटीजर को, स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। यूजिंग वेरिएबल्स इन प्रोग्राम। वेरिएबल स्टोर वैल्यूज, वेरिएबल क्या करती है, स्टोर वैल्यू करते हैं। जैसा कि मैंने लिखा लेट आइटम 1 इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू 20 है, आइटम 2 की वैल्यू 60 है, आइटम 3 की वैल्यू 75 है, और फिर लेट टोटल प्राइस विल गेट द वैल्यू फ्रॉम राइट साइड। आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3 ये तीनों को ऐड करेगा और टोटल प्राइस में स्टोर करेगा और डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल प्राइस में इसको शो कर देगा। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल दी गई है, इसमें एक प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम लिखा गया है जिसमें हमने तीन वैल्यू को, तीन प्राइसेस को ऐड करके उसका सम अप शो किया है। Variables are used to store values. They help us perform calculation easily. PBA question often ask students to calculate total, sum, area और volume. ये PBA में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि सम करना, एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना। Key points: always choose meaningful variable names such as total price, area और num. एक और important बात जो मैं लिखना इधर भूल गया हूं कि you have to write variable name without space. बहुत important टिप है ये। आप total space price नहीं लिख सकते। ठीक है, you have to write total price together or you can write total underscore price. Simple calculation style questions. Suppose let length equal to 10, let width equal to 5, let area equal to length time width. मैंने आपको फिर कह रहा हूं कि when you are declaring a value to a variable, then you must use let. Clear? Let आपने लास्ट में यूज करना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरिया इक्वल टू प्लस एरिया। अगर आपको बहुत से स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट में कि हम प्रोग्राम कहां से स्टार्ट करें। अगर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम आता है तो आपने यहां से स्टार्ट करना है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ, ये कंप्लीट प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इसके साथ स्क्रिप्ट वगैरह लिख देंगे तो वो ऑप्शनल होगा, लिख देंगे तो ठीक है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। अगर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि उसने आपकी जावास्क्रिप्ट की लॉजिक चेक करनी है, कोड की, कि आप कोड कैसे लिखते हो। क्लियर? Multiplication operator asterisk is used here. The result is stored in a variable named area. This style is common in geometry-based PBA question. Common question type area of rectangle. आपको किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने को, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के कैलकुलेट करने को, सम ऑफ वैल्यूज के करने को, टोटल कॉस्ट को एंड एवरेज को, इन चीजों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर ना क्लियर हो तो मुझे बता दीजिएगा, इफ आई कैन कवर। हाउ डिसीजंस आर मेड इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में डिसीजंस कैसे किए जाते हैं? जैसे कि हम इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, हमने क्या लिखना होता है, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू, आगे कंडीशन लगाते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है? ऑलवेज सिंटेक्स याद रखें। आपने क्या करना होता है, आपने इफ लगाना, आपने लिखा इफ, यहाँ पे इफ लिखते हैं, इफ के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन के बाद आपने ये ब्रेसिस लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी हो तो ब्रेसिस लगाना लाजमी नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा करनी हो तो आपको लाजमी लगाना है फिर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है एल्स पार्ट आ जाता है, ये इसका एल्स पार्ट आ जाता है। एल्स पार्ट स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे कर लिया, ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, जो भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये इसका इफ एल्स का एक सिंटेक्स होता है। यहाँ पे कंडीशन देते हैं, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इस एग्जांपल मैंने नम ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। ठीक है, आप रिमाइंडर भी चेक कर सकते हो, आप वैल्यू भी लेस देन भी लगा सकते हो, ग्रेटर देन भी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, ये इफ और एल्स का ऐसे स्ट्रक्चर बना लेना है। इफ नम ग्रेटर देन 0, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पॉजिटिव नंबर, एल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेगेटिव नंबर। इफ चेक्स वेदर अ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या कर दिया जाएगा, इस वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा और ये वाला एल्स वाला पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। क्लियर? एल्स रन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। दिस इज यूजफुल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। ये किसके लिए यूजफुल होगा कि आपको एग्जामिनर पीबीए में क्वेश्चन पूछता है कि बताएं नंबर इज पॉजिटिव है या नेगेटिव,
बताएं कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर ग्रेटर देन 50 हो गए या 40 हो गए, वो स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ। एंड ग्रेटर स्मॉलर क्वेश्चन, और पूछेगा कि 2 नंबर मैं आपको देता हूं, इनमें से ग्रेटर नंबर कौन सा, वो दे दे। 3 नंबर दे देगा आपको, 4 नंबर का कह देगा। स्मॉलर का पूछ सकता है या ग्रेटर का पूछ सकता है। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। इसमें हमने क्या करना है, एक नंबर एंटर करना है और उसमें देखना है एक नंबर इवन है या ऑड है। ये कंप्लीट कोड है इसका। लेट नम इक्वल टू पार्स इंट। मैंने पार्स इंट क्यों यूज किया, क्या आप जानते हैं? आपको पता होना चाहिए, मैंने पीछे कवर अप करके आया हूं। प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, आप एक नंबर एंटर करेंगे और नम परसेंटेज 2, आप 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे इस नंबर को और इसका रिमाइंडर गेट करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, मैं लिखा 17 को जब मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो 8 2s आर 16 होता है, बाकी क्या बचेगा 1। तो ये रिमाइंडर, ये चीज मुझे रिमाइंडर देगा। ठीक है, अगर सपोज देखिए मैं लिखता हूं a इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं लिखता हूं b इक्वल टू 10 रिमाइंडर 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको पता है, इसमें वो आंसर आपको देगा 3, क्योंकि इंटीजर होगा तो 3 देगा, बाकी वैल्यू को इग्नोर कर देगा। जबकि इसमें मैं उसका रिमाइंडर गेट कर रहा हूं, 10 को डिवाइड करे 3 के साथ और बाकी क्या बचता है, बाकी 1 बचता है। ठीक है, तो इस केस में वो 1 आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रिमाइंडर गेट कर रहा हूं। तो इफ num percentage 2 equal to 0, it means number is even, otherwise number is odd. Logic: if the remainder after divisible by 2 is 0, the number is even, otherwise it is odd. Another problem, another popular PBS style logic question. Let a equal to parse int prompt, enter first number, enter second number. If a is greater than b, then largest number is a, otherwise largest number is b. ये भी एक पॉपुलर एग्जाम का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं पॉपुलर मींस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फर्स्ट इनपुट बोथ वैल्यूज, देन compare them using greater than and then display the larger value. लूप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिपीटेशन। अब हम लूप की तरफ मूव करते हैं। लूप आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिपीटेशन के लिए। फॉर लेट आई इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस कर दिया। इसमें क्या होता है, ये इसकी इनिशियलाइजेशन होती है। आपका प्रोग्राम जब स्टार्ट होता है, जब ये कोड स्टार्ट होता है, तो वो एक बार इनिशियलाइजेशन करता है, इसके बाद बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होती, एक बार होती है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है इसका कंडीशन को चेक करना। ये इसकी कंडीशन को चेक कर रहा है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इसकी बॉडी की तरफ मूव करेगा। ये बॉडी यहाँ पे इसकी एंड हो जाती है, एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है इसकी बॉडी में। तो यहां से फिर कहां पे जाएगा, इसके बाद वो मूव करेगा इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर वो कहां पे मूव करेगा, फिर वो कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को चेक करने के बाद फिर ऐसे ही ये मूव करता रहता है जब तक इसकी कंडीशन ट्रू रहती है। क्लियर? जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप इसकी बॉडी से एग्जिट हो जाएगा, यानी लूप इसकी बॉडी को इग्नोर करेगा और वो नेक्स्ट मूव करेगा। A loop repeats instructions. It is useful for tables, series pattern and counting. आपसे वो टेबल लिखवा सकता है, सीरीज लिखवा सकता है, कोई पैटर्न पूछ सकता है एंड काउंटिंग आपसे करवा सकता है। टेबल की एग्जांपल वो कहता है आप ऐसा करें, 5 का टेबल लिखें, तो आपने 5 का टेबल लिखना है। सीरीज वो कहेगा ये सीरीज लिखे 1 + 3 4 + 3 7 7 + 3 10 + 13। वो इस तरह की सीरीज को भी आपको दे सकता है। वो आपको पैटर्न भी दे सकता है। जैसे पैटर्न की एग्जांपल, ये मैंने पैटर्न की एग्जांपल दे रहा हूँ। 4 5 चले, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 स्टार और यहाँ पे फिर 5 स्टार। ये एक पैटर्न, वो आपको ये पैटर्न भी दे सकता है। आप जावास्क्रिप्ट की वीडियो को देखेंगे डिटेल, वहां पे से आपको आइडिया हो जाएगा। और काउंटिंग भी पूछ सकता है। काउंटिंग वो कह सकता है कि आप ऐसा करें कि 1 से लेके 100 तक मुझे इवन नंबर शो करने हैं। ठीक है, तो आपको इसका प्रोग्राम लिखना। वो कह सकता है मुझे 1 से लेके 50 तक मुझे 5 के फैक्टर्स शो करने हैं। तो यू हैव टू रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। द 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर, इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? स्टार्टिंग वैल्यू जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, इसके बाद स्टॉपिंग कंडीशन जिसको हम कंडीशन कहते हैं, और थर्ड वन इज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट।
डिक्रीमेंट उस सूरत में होता है जैसा कि हमने 10 से स्टार्ट करना है और 1 की तरफ मूव करना है। प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ अ नंबर, अगर आपने किसी भी नंबर का टेबल शो करना है तो उसके ये प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है। लेट्स नम इक्वल टू पास इंट प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। प्रॉम्प्ट आपको पता है यूजर इनपुट के लिए यूज किया जाता है। पास इंट फंक्शंस कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग टू इंटीजर। यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, सपोज अगर 5 लिखेंगे तो वो 5 का टेबल लिखेगा फ्रॉम 1 to 10। कहां से स्टार्ट करेगा? 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक मूव करेगा। ठीक है। और नम में क्या करेगा? नम में वो नंबर होगा, अगर यहाँ पे 5 होगा 5 ये मल्टीप्लाई शो करेगा, यहाँ पे आपको पता 1 आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे इक्वल आ जाएगा, फिर नम मल्टीप्लाई बाय 1 मीन 5 मल्टीप्लाई 1 का आंसर 5 आ जाएगा और ये ब्रेक कर देगा, ताकि अगर जावास्क्रिप्ट को हमने ब्राउजर में यूज करते हैं तो उसके लिए हमें ये ब्रेक लगाना पड़ेगा। फिर लूप रिपीट होगा 5 फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 10 शो कर देगा। फिर यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, जबकि लूप की वैल्यू सिर्फ चेंज होती जा रही है। 5 3 15 सो ऑन मूव करता हुआ 5 टाइम्स 10 इक्वल टू 50 ये डिस्प्ले करेगा। For table question, student must clear join text and calculation in the output line. सिंपल फैक्टोरियल लॉजिक यूजिंग लूप, हमने फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि फैक्टोरियल में क्या किया जाता है कि आपके पास कोई भी नंबर आप एंटर करते हैं, जैसा कि 5 आपने एंटर किया तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। मैं 5 से लेके 1 की तरफ मल्टीप्लाई कर लूं या फिर 1 से लेके 5 की तरफ मूव कर लूं मल्टीप्लाई करते हुए, तो बात तो सेम ही है। तो हमने बॉडी में क्या लिखा? बॉडी में हमने ये चीज लिखी हुई है जिसमें हमने लिखा हुआ फैक्ट इक्वल टू फैक्ट टाइम्स आई। तो आपको पता है कि आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक चलेगी? उसके नंबर तक। अगर आपने 5 लिखा हुआ तो ये 5 तक मूव करेगी, अगर 6 लिखा हुआ तो वो 6 तक मूव कर देगी। और फैक्ट में बाय डिफॉल्ट आपने 1 लिखा हुआ, ये फैक्ट में 1 लिखना ना भूलिएगा। ठीक है। 0 लिखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, तो इसलिए आपने फैक्ट में 1 लिखा। 1 टाइम्स 1 1 आ गया, 2 टाइम्स 1 2 आ गया। ये मैंने 1 कहां से लिया? ये मैंने 1 ये लिया था। 3 टाइम्स 2, ये मैंने 2 कहां से लिया? ये मैंने 2 इधर से लिया, जो फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू थी। 6 हो गया। 4 टाइम्स 6, ये मैंने 6 लिया इधर से, जो कि फैक्टोरियल की लास्ट वैल्यू थी 24। 5 times 24 equal to 120 and then 120 times 6 equal to 720। ओके, तो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट, दिस प्रोग्राम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंबाइंस वेरिएबल लूप एंड कैलकुलेशंस इन वन क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। तो आपने फैक्टोरियल लास्ट में फैक्टोरियल को शो करना है। ये लेबल है इसका और ये वैल्यू है इसकी फैक्ट, जो कि हमने इसमें स्टोर की हुई थी। How the logic works: start factorial with 1, take a number as input from the user, use a loop from 1 to the entered number, multiply by fact by each value of I, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं। Store the updated result in fact, display the final factorial at the end, and factorial question helps students practice both variables and loops together. Most important JavaScript question for PBA students should practice these first: even or odd number, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, ये सब आपने मुझे करके दिखाने हैं, बताना है। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, टेबल ऑफ अ नंबर, एरिया, वॉल्यूम कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, टोटल और सम, सीरीज जनरेशन। बेस्ट preparation methods: do not memorize only one question, learn the logic pattern। आपको लॉजिक पैटर्न पता होना चाहिए कि लूप कैसे काम करता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे एंड होता है और उसकी कंडीशन क्या होती है। हमने ये प्रोग्राम को रटा नहीं लगाया होता, हमने कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को मेमोराइज किया होता है। ठीक है, कि काम कैसे करना है इसका, ये काम क्या करता है, हमने सिर्फ लॉजिक को देखते हैं। बिकॉज द सेम लॉजिक अपीयर्स इन डिफरेंट वर्डिंग। फाइंड द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग कोड, आपको कोड भी दिया जाएगा कि आपने इसमें से मिस्टेक फाइंड करें। क्या मुझे बता सकते हैं इसमें क्या मिस्टेक है? वीडियो को पॉज करें और बताएं कि इसमें मिस्टेक कहां कहां पे है। इसमें 2 मिस्टेक्स है, मैं आपको बताता हूं। फाइंड कर लिया, चलिए।
लेट 4 इक्वल टू रोज, मैंने लिखा मैंने वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। आपने वेरिएबल का नाम 4, आप वेरिएबल का नाम 4 से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये वेरिएबल के रूल्स में आता है। ठीक है, आप वीडियो में देखें, वहां पे मैंने रूल्स को डिस्कस किया होगा, तो आप डिटेल में जा सकते हैं। लिहाजा आप 4 नहीं लिख सकते, आप रोज इक्वल टू 4, लेट रोज इक्वल टू 4 लिख सकते हो। पर लेट आई इक्वल टू रोज से स्टार्ट करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 0 की तरफ मूव करता जा रहा। देखें, द लूप कंडीशन इज रॉन्ग। ठीक है, आई क्या होना चाहिए, आई शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यानी कि अगर आप 4 से मूव कर रहे हो तो 3 की तरफ कब जाएंगे, जब आप माइनस करेंगे। तो 2 की तरफ अब फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। आप कहते हैं जब तक आई ग्रेटर उससे बड़ा रहता है तो उस वक्त तक मूव करता रहे। करेक्ट वर्जन ऑफ द डिबगिंग एग्जांपल, दिस इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द डिबगिंग। रोज इक्वल टू 4 लिख दिया, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, रोज को 4 करने के बाद यहां पे भी इसकी कंडीशन भी ठीक कर दी। एक तो ये कंडीशन मैंने ठीक की, और रोज इक्वल टू 4 मैंने लिख दिया। यहाँ पे रोज इक्वल टू 4 कर दिया, और यहाँ पे कंडीशन मैंने आई इक्वल टू 0 कर दी। Debugging strategy, always check variable names, brackets, semicolon and loop condition carefully। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। अपने वेरिएबल्स के नेम को देखना है कि वेरिएबल के नेम्स क्या है, इसके ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन इसमें मिसिंग तो नहीं है, और लूप की कंडीशन क्या है, ये केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है। ये स्ट्रेटजी होती है डिबग करने के लिए। Common mistakes students make in the exam. Avoid these errors in the exam. Number 1 is forgetting to use parse int. आपने parse int को यूज करना नहीं भूलना in case of number only. जहां पे text required होगा वहां पे parse int आपने नहीं यूज करना. Writing incorrect variable names, using wrong comparison or loop condition, forgetting braces or semicolons, writing incomplete output statement, memorizing code without understanding the logic. Importance: small syntax mistakes can make the whole program incorrect. So, neat and clean and carefully writing is necessary. How to prepare smartly after this video? Quick homework for students: write the even or odd program yourself, write a program for positive or negative number, practice a table program using loop, try one factorial question, solve one debugging example. Best practice rule: रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, और उसमें देखिए उसमें लॉजिक कौन सी यूज की गई है। देन राइट द स्टेप इन सिंपल फॉर्म बिफोर कोडिंग। What we learned today, we understand the paper pattern briefly. We started directly with the section A learning. We covered input output variable condition and loops. We studied important previous style JavaScript examples. We also practiced a debugging question. And next video is about, we can continue with more important JavaScript program or move to HTML and CSS with fast track learning. This is second video on fast track of computer science practical based assessment 2026. इस वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट के सीरीज से रिलेटेड प्रोग्राम को कवर अप करूंगा, HTML को और CS को देखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो 1 बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें। ठीक है, तो इसमें मैं ट्राई करूंगा कि आपको इनफ डिटेल तक एक्सप्लेन करूं कि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। Remaining JavaScript program plus HTML and CSS, and I will try to cover only important programs that is related to JavaScript, HTML or CSS. And this is my channel Computing Knowledge. If you did not subscribe my channel, please subscribe it. Okay, fast track session is what we will cover in this lecture. Remaining important JavaScript program for PBA, output based and debugging questions, complete HTML web page structure,
import CSS styling for exam questions. Final exam tips for better marks. And this is advice. Since basic programs were already covered, this lecture focuses on the remaining important exam oriented material. आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको लाजमी आप देख लीजिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. Remaining JavaScript programs, it includes largest of three numbers, number series generation, search element in a list, output based questions, debugging question. And important point is that these are the remaining important JavaScript questions after covering the basics in the previous video. Find the largest of three numbers. यहाँ पे हमने क्या करना है, तीन नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने तीन वेरिएबल्स यूजर से गेट किए बाय यूजिंग prompt. As you know that prompt is used to get the value from the user. Prompt. Enter the first number. This is a label that you want to display there, and value and parseInt is used to convert string value into the number value, into the integer value. Value will be stored into variable A and same way into B and same way into C. अब अगर मैंने लिखना है largest number is A, तो मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगी कि A B से भी ग्रेटर होना चाहिए and A ग्रेटर देन C से भी होना चाहिए. याद रखिए आपने and ये वाला यूज नहीं करना, ये यूज नहीं करना, आपने ये वाला and यूज करना है. क्लियर? मीन्स के आप ये तो डॉलर साइन है एंड आपने डबल एंड लगाना है. ठीक है. डॉक्यूमेंट डॉट राइट लार्जेस्ट नंबर ए में, और इस तरीके से फिर हम चेक करेंगे एज इफ के साथ कि बी ग्रेटर देन बी को लार्जेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी शुड बी ग्रेटर देन ए एंड बी शुड बी ग्रेटर देन सी. अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट की तरफ मूव करेगा और यहां पे वो डायरेक्ट लिख देगा लार्जेस्ट नंबर इज सी. क्लियर? इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से देखिए. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लास्ट में लिखिए मुझे. हाउ द लॉजिक वर्क्स. टेक थ्री नंबर्स एज इनपुट. दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. कंपेयर द फर्स्ट नंबर विद द अदर टू. If the first is not the largest, compare the second number. If the both condition fails, then third number is the largest. Exam tips. This program is important because it uses multiple conditions with if, else if and else. क्योंकि इसमें तीन चीजें यूज की होती है. if भी यूज हो रहा है, else if भी यूज हो रहा है and else यूज हो रहा है. तो ये प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. डिस्प्ले सिंपल नंबर सीरीज. लेट स्टार्ट इक्वल टू 1 से हमने स्टार्ट किया. स्टेप हमने 2 का देना. लेंथ क्या देनी है हमने 10 की. तो 0 से स्टार्ट करेगा. फॉर लेट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक मूव करेगा, आई के लेस देन ऑफ लेंथ तक. इट मींस इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 सो ऑन टिल 9. आई में प्लस प्लस करेगा और ये क्या करेगा, स्टार्ट प्लस आई. ये क्या करेगा, स्टार्ट में क्या पड़ा हुआ है, स्टार्ट में पड़ा हुआ है 1 1 प्लस 1 1 प्लस 0. स्टार्ट में ये देखिए 1 पड़ा हुआ है प्लस आई में फर्स्ट टाइम 0 पड़ा हुआ है. क्लियर? और मल्टीप्लाई किससे करेगा, मल्टीप्लाई करेगा स्टेप के साथ. स्टेप की वैल्यू क्या पड़ी हुई है 2. स्टेप की वैल्यू 2 पड़ी हुई है. तो यहां पे क्या कर देगा, 2 टाइम्स 0 0 हो जाएगा प्लस 1. आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. सेकंड टाइम जब मूव करेगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 दैट विल बिकम 3. नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 3 2, जबकि स्टेप की वैल्यू 2 ही है. 4 प्लस 1 5. तो ये देखिए 1 3 5 सो ऑन मूव करता जाएगा. ठीक है. आई कहां तक मूव करेगा, आई लास्ट नंबर 9 होगा. जब 9 होगा तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 18 प्लस 1
लास्ट नंबर 19 वो शो करेगा। क्लियर? Generate terms by starting from the first value and adding the step each time. Check whether a number exists in a list. हमने देखना है कि नंबर लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो लेट नंबर्स इक्वल टू, हमने एक अरे ले ली और अरे में के एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50। लेट फाउंड इक्वल टू फॉल्स, हमने एक वेरिएबल लिया फाउंड और उसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स स्टोर कर लिया। ठीक है, और ये हम चेक करेंगे फाउंड की वैल्यू जब ये हम लूप को एंड करेंगे उसके बाद देखेंगे कि फाउंड में क्या पड़ा हुआ है। बाय डिफॉल्ट फाउंड में फॉल्स हम लेके चल रहे हैं। एंटर द नंबर टू सर्च, हम एक नंबर सर्च करने जा रहे हैं और वो नंबर सर्च करने जा रहे हैं वो हम की में स्टोर कर देंगे। i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा, i लेस देन नंबर्स तक मूव करेगा, नंबर्स की लेंथ तक। मींस कि आपको पता है कि जो अरे होती है, अरे स्टार्ट फ्रॉम 0 से स्टार्ट होती है। यानी कि अगर इसमें मैं 10 लिखता हूं, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और इसके बाद लास्ट एलिमेंट इज 50। ये 50 एलिमेंट लिख दिया। ठीक है, और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होंगे कहां से? इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा, फिर इसके बाद 1 पे चला जाएगा। ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। और लूप स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको पता, पहले 0 के लिए जाएगा, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए और ऐसे मूव करता जाएगा। और चेक क्या हो रहा है, नंबर्स ऑफ आई इक्वल टू की। सपोज की में आपने एंटर किया हुआ 30, वो चेक करेगा कि नंबर्स ऑफ आई की वैल्यू 0, वो देखेगा कि 10 क्या इक्वल टू 30 है। 30 क्योंकि हमारी की थी तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करेगा 20 इक्वल टू 30 है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करेगा कि 30 इक्वल टू 30 है तो ये ट्रू है। याद रखें जब हम कंपेयर करने जाएंगे हम डबल इक्वल यूज करेंगे। डबल इक्वल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन व्हाइल सिंगल इक्वल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट स्टेटमेंट। ओके, हमने जब मैच करेगा तो फाउंड में क्या वैल्यू आ जाएगी, फाउंड की वैल्यू उस वक्त ट्रू हो जाएगी जो कि हमने पहले फॉल्स लेके चल रहे थे। इसके बाद लूप एंड हो जाएगा, फिर इसके बाद देखेगा 40 पे लूप, क्योंकि टर्मिनेट नहीं होगा, आप टर्मिनेट भी कर सकते हो जब नंबर फाउंड हो जाए। तो नेक्स्ट चेक करेगा 40 इक्वल टू 30, नो। 50 इक्वल टू 30 तो ये भी नो होगा, तो बाय डिफॉल्ट नो। फाउंड में क्या पड़ा हुआ, ट्रू। देखेगा इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, ये फाउंड मैंने नहीं लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये डिफॉल्ट लिखा होता है फाउंड इक्वल टू ट्रू। फाउंड में अगर ट्रू वैल्यू हो तो ये शो करेगा नंबर्स फाउंड। अगर ये नंबर नहीं होगा, अगर मैं नंबर सर्च करूंगा 25, अगर की मेरे पास 25 हो तो फिर मैच नहीं करेगा, तो उस केस में वो एल्स के पास जाएगा और नंबर नॉट फाउंड डिस्प्ले करेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ द सर्च लॉजिक वर्क्स। स्टोर वैल्यू इनसाइड अ लिस्ट, वैल्यू को स्टोर करती है लिस्ट में और टेक द सर्च वैल्यू फ्रॉम द यूजर, चेक द एलिमेंट यूजिंग अ लूप, if match is found, set found to be true and display whether the number was found or not. This question is important because it introduces the list handling and searching logic. ये important question है क्योंकि इसमें दो concept किए जा रहे हैं। एक तो क्या कर रहा है, लिस्ट हैंडल कर रही है, लिस्ट में नंबर आप लिख रहे हो और दूसरा लिस्ट में से आप नंबर को सर्च भी कर रहे हो। What will be the code display? Let sum equal to 0, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करें, i less than equal to 4, i plus plus, sum equal to sum plus i। तो हम देखिए कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, i की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, कहां तक मूव कर रही है, 4 तक मूव कर रही है। तो मैं लिखता हूं i, यहां पे i लिखा और फिर मैं लिखता हूं sum equal to sum plus i मैं लिख देता हूं। चले, i की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। और स्टेटमेंट इसके अंदर क्या कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम में बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, सम में पहले 0 पड़ा हुआ,
0 plus 1, answer will be sum. Next time when value of I is 2, value of sum is 1 plus 2, 3. Next, I की वैल्यू 3, सम की वैल्यू 3 पड़ी हुई थी प्रीवियस, तो ये 6 आ जाएगा. नेक्स्ट, I की वैल्यू 4 हो जाएगी, सम की प्रीवियस वैल्यू 6 पड़ी हुई है, तो ये 10 हो जाएगा. सम वैल्यू क्या 10, तो ये कौन सी वैल्यू शो करेगा, आपको शो करेगा 10. सम मीन क्या शो करेगा, जब इसको 10 कर दे, क्योंकि हमने लेबल नहीं लगाया हुआ है. तो ये आउटपुट है, आपसे वो आउटपुट के भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है. ठीक है, तो 4 सम इक्वल टू 10 आ जाएगा. द कोड विल डिस्प्ले 10. फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग कोड. ये कोड दिया गया, आपने मिस्टेक फाइंड करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे मिस्टेक है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपने कोई मिस्टेक फाइंड करनी है तो आपने देखना इसके पैरेंथेसिस है, इसके सेमीकोलन लगे हुए हैं, इंटीजर चाहिए या स्ट्रिंग चाहिए. ठीक है, और इसके साथ आपने देखना है कि उसकी ब्रेसेस लगी हुई या नहीं, अपर केस, लोअर केस, ये सारी चीजों को देखना. तो इसमें देखिए क्या हुआ. सबसे पहले मिसिंग सेमीकोलन मिसिंग है. ठीक है, आपको पता सेमीकोलन किसी लाइन के साथ सेमीकोलन नहीं लिखे हुए. फिर मिसिंग ब्रैकेट्स अराउंड इफ कंडीशन. ठीक है, तो इसका करेक्ट कोड क्या होगा, ये इसका करेक्ट कोड आ गया. ठीक है, क्या क्या चीजें मिसिंग थी, एक तो ये ब्रैकेट मिसिंग थी, इधर ये ब्रैकेट भी मिसिंग थी, ये सेमीकोलन भी मिसिंग थी, ये सेमीकोलन भी मिसिंग थे. नेक्स्ट मूव करते हैं. हाउ टू स्कोर बेटर इन सेक्शन ए. ये बहुत इंपॉर्टेंट. आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन नीड्स कंडीशन, लूप, लिस्ट और आउटपुट ट्रेसिंग. Always use parse int for number input. Use meaningful variable names. For output questions, trace the code step by step. For debugging, check bracket, semicolon, spelling, and conditions. Learn the logic, not just the code. Advice. Largest of three numbers, number of series, search in list, output tracing, and debugging are strong remaining JavaScript topics for PBA. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PBA के लिए. Second part is HTML complete lecture. Why HTML is important in PBA? HTML is used to create the structure of the web pages. In PBA, student may be asked to design a simple web page. Common example include portfolio, जिसमें portfolio आपको कहेगा personal page और educational record page कह सकता है. Student should know the standard web page format and important tags. आपको उसका format, standard format और important tags पता होने चाहिए, जो कि मैं डिस्कस करूंगा इधर. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. आपने HTML के बारे में लिखना स्टार्ट करना है, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ. HTML stands for hypertext markup language. It is used to create web page structure. HTML uses tags written inside angle brackets. Most tags have opening and closing forms. Example, paragraph open किया और paragraph close कर दिया tag. Standard HTML format. ये standard HTML format HTML is the root tag होता है. Head contains the title and page information. Title sets the title of the web page. Body contains visible content. ये 4 points बहुत important है. You should remember if you are new learner in HTML. Simple HTML web page. ये एक simple HTML page है. ये देखिए, आपने HTML start किया, HTML को close कर दिया, इसके बाद हेड आपने स्टार्ट किया, हेड को क्लोज कर दिया. ये हेड सेक्शन सेपरेट होता है और इसके बाद बॉडी सेक्शन इसके बाद लिखा जाता है. ठीक है, हेड के अंदर ही टाइटल लिखा जाता है. टाइटल आपने स्टार्ट किया, टाइटल को क्लोज कर दिया और माई पोर्टफोलियो लिख दिया. अब ये देखिए, बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और बॉडी यहां पे क्लोज हो गई. इसके अंदर आपने क्या लिखा, हेडिंग 1 में माई पोर्टफोलियो लिख दिया और पेज में आपने लिखा पैराग्राफ यूज करते हुए वेलकम टू माई वेब पेज. तो ये स्ट्रक्चर है. टैग्स स्टूडेंट मस्ट नो. H1 फॉर हेडिंग के लिए यूज किया जाता है, P पैराग्राफ के लिए यूज किया जाता है, IMG फॉर इमेज के लिए यूज किया जाता है, UL एंड OL फॉर लिस्ट होते हैं, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के लिए, टेबल्स फॉर टेबल्स के लिए यूज किया जाता है, एंकर फॉर लिंक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम हाइपरलिंक यूज करते हैं, और हेडर एंड नैव फॉर वेब पेज सेक्शन, ये सेक्शंस क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं. बेसिक कंटेंट इन HTML. ये बेसिक कंटेंट होती है, जैसे H1 मोहम्मद अली मैंने लिखा, P पैराग्राफ में मैंने आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस लिख दिया, और एग्जाम की ये टिप है, अ सिंपल वेब पेज यूजुअली स्टार्ट विद हेडिंग एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन.
इंसर्ट प्रोफाइल पिक्चर, अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यू हैव टू यूज img source इक्वल टू प्रोफाइल डॉट जेपीजी। ये पिक्चर्स जो लिखे जो आपके वो पिक्चर होगी उसका उस फाइल का नाम डॉट जेपीजी, उसकी एक्सटेंशन है, विड्थ लिख देनी है 200, हाइट 200 लिख देनी है। अगर पीबीए में मेंशन किया है कि विड्थ इतनी चाहिए होनी चाहिए, हाइट उतनी होनी चाहिए, तो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। src gives the image name or path, width sets the image width and same way height. यूज लिस्ट टैग, हम लिस्ट टैग भी यूज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है यूएल, जिसमें वो बुलेट्स पॉइंट शो करता है, नंबरिंग शो नहीं करता। नंबरिंग ऑर्डर लिस्ट में शो करते हैं। लिस्ट आइटम में HTML आ जाएगा, CSS आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट आ जाएगा और यूएल को क्लोज कर। जो लिस्ट आइटम आपने स्टार्ट करना है वो लिस्ट आइटम को आपने क्लोज भी करना है। जैसा कि मैंने ये देखा, लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट की हुई है, इसमें लिस्ट आइटम मैंने स्टार्ट किया और इसमें लिस्ट आइटम को मैंने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से यूएल को मैंने स्टार्ट भी किया इधर और यूएल को मैंने क्लोज भी कर दिया इधर। यूएल क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड li क्रिएट द ईच लिस्ट आइटम नंबरिंग में। एजुकेशन रिकॉर्ड टेबल के लिए क्रिएटिंग अ टेबल, एजुकेशन रिकॉर्ड टेबल, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, टेबल का रो लिख ली और ये रो हम कहां से लेंगे, ये रो यहां से स्टार्ट होती है, ये टेबल रो यहां से स्टार्ट होके यहां तक मूव हो रही, ये टेबल की रो है, टेबल की रो है, यानी कि ये एक देख ले कि आपके पास जिसको हम हेडिंग कहते हैं। ठीक है, ये टेबल है और टेबल रो में हेडिंग, दो हेडिंग दी है। ठीक है, पहली में क्या आ जाएगा, पहली में डिग्री लिख लेंगे, डिग्री लिख ली, और दूसरी में क्या लिख दिया, दूसरी में ईयर लिख दिया। ये टेबल की हेडिंग आपने लिख दी। नेक्स्ट टेबल रो में आपने क्या लिखते हैं, ये टेबल रो स्टार्ट हुई, ये टेबल रो क्लोज होगी, और टेबल डेटा मैंने क्या लिखा, मैट्रिक, इधर मैट्रिक आ जाएगा, इधर मैट्रिक आ गया, और टेबल डेटा तो ईयर कौन सा आ गया, 2020 आ गया, एक ही हो गया। नेक्स्ट फिर टेबल रो लिखते हैं, ये देखिए टेबल रो लिखी, टेबल डेटा क्या था, इंटरमीडिएट, ये आपने इंटरमीडिएट लिख दिया और 2022 लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद टेबल क्लोज कर दीजिए। ये सिंपल है, देखिए जितनी रो, जब रो लिखनी है आपने पहले टेबल का रो लिखनी है। ठीक है, टेबल हेडिंग के बाद टेबल रो लिखी, टेबल रो को क्लोज कर दिया और उसके बाद आपने इसकी वैल्यू लिखनी है जिसको हम टेबल डेटा के नाम से लिखते हैं। सिंपल मेन्यू इन HTML, ये मेन्यू होते हैं। एंकर टैब आपने स्टार्ट करना है, एंकर टैग से आपने स्टार्ट किया, एंकर टैग से क्लोज कर दिया। ये वो चीज होती है जिसको आपने डिस्प्ले करना होता है, टेक्स्ट होता है। होम ये डिस्प्ले करेगा और ये लिंक होता है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं लिंक नहीं लिखूंगा तो वो उसी पेज पे रहेगा। ठीक है, अगर आपने किसी और पेज पे जाना तो यहाँ पे उसका URL लिख देंगे। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट ये डिस्प्ले करने के लिए होंगे। href में आपने आपने नंबर साइन लिख के लिख देना है। Simple navigation links make the web page more complete and professional. HTML exam style example, ये exam style की example है। आपने क्या कर लिया, आपने HTML से स्टार्ट किया और HTML नेक्स्ट पेज मैं क्लोज करूंगा क्योंकि यहाँ पे पेज कम है। हेड मैंने स्टार्ट किया, हेड को मैंने क्लोज कर दिया, टाइटल मैंने स्टार्ट किया और टाइटल को क्लोज कर दिया, और इसमें मैंने क्या लिखा, माई पोर्टफोलियो। बॉडी स्टार्ट की और बॉडी को नेक्स्ट में क्लोज करूंगा। बॉडी के अंदर हेडर सेक्शन बना दिया, ये हेडर सेक्शन मैंने स्टार्ट किया, हेडर सेक्शन मैंने क्लोज कर दिया, और हेडर में मैंने H1 लिखा, नाम लिख दिया और पैराग्राफ लिख दिया कंप्यूटर साइज का। इसके साथ नेविगेशन बार आ गई, नेविगेशन बार में होम आ गया, अबाउट मी आ गया और कॉन्टैक्ट अस आ गया। इसके बाद इमेज सोर्स लगा दिया हमने, प्रोफाइल.jpg, उसके फाइल यानी कि सोर्स का URL दे दिया जहां से हमने वो फाइल को पिकअप करना है, और इसकी विड्थ दे दी और इसकी हाइट दे दी। इसके बाद हेडिंग 2 में मैंने स्किल्स लिख दिया, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज करते हुए ये स्टार्ट किया, क्लोज किया, इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख दिया। Add image and skill list neatly so the web page looks complete and organized. हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया, टेबल, फिर मैंने यहाँ से फिर टेबल स्टार्ट कर लिया और उसका बॉर्डर मैंने क्या कर दिया, बॉर्डर 1 लगा दिया। इसी तरीके से टेबल रो मैंने स्टार्ट की, टेबल रो क्लोज कर दिया, ऐसे ही उसने डिग्री और ईयर लिखा
और फिर टेबल रो में इसने क्या लिखा, टेबल रो में इसने ये एक रो ऐड कर दी जिसमें मैट्रिक और 2020 लिखा। इसके बाद टेबल क्लोज कर दिया, बॉडी क्लोज कर दी और HTML को क्लोज कर दिया। हाउ टू स्कोर बेटर इन HTML क्वेश्चन, स्टार्ट विद प्रॉपर HTML स्ट्रक्चर। ये चीज राइट ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग केयरफुली, ये आपने अच्छे तरीके से देखना है कि आपने जब HTML के क्वेश्चन देना तो आपने उसमें ये सारी चीजें लिखनी है। यूज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज लिस्ट, टेबल एंड लिंक्स प्रॉपरली, राइट एट्रीब्यूट्स इनसाइड quotation marks, keep the web page simple, neat and complete. Advice: practice one complete portfolio style web page and one educational record table. ये आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करके जानी है, ये लाजमी क्वेश्चन आएगा। Why CSS is important? CSS stands for Cascade Style Sheets. It is used to style HTML web pages. CSS controls color, size, spacing, and layout. In PBS, students may be asked to write short CSS code. How CSS is written? First, write the selector, then write property and value inside braces. Each property lines ends with a semicolon. Format selector property. Format में क्या आपने क्या करना, selector लिखना, फिर property, फिर उसकी value. Style the headings. आपने अगर heading को हेडिंग में आपने CSS अप्लाई करनी है तो आपने H1 selector लिखा, फिर प्रॉपर्टी कौन सी थी, कलर, वैल्यू कौन सी थी, ब्लू, और सेमीकोलन आपने लिखना है। कलर इक्वल टू ब्लू नहीं लिखना, कलर के बाद कॉलन लगाना आपने। H1 is the selector, color is the property and blue is the value. Resize the image, अगर आपने इमेज को रीसाइज करना है तो IMG is the selector, width is the property और 300 is the value. सेमीकोलन लास्ट में लगाना लास्ट में। हाइट में आपने ऐसे लिखा, हाइट 200 पिक्सल। विड्थ एंड हाइट क्वेश्चंस आर कॉमन इन CSS, ये याद रखिए आपने, ये क्वेश्चन कॉमन पूछा जाएगा आपसे CSS में। स्टाइल टेबल हेडिंग, अगर आपने टेबल की हेडिंग को लगाना है तो आपने TH इज द सिलेक्टर, कलर इज द प्रॉपर्टी एंड लाइट ब्लू इज द वैल्यू और लास्ट में सेमीकोलन। स्टूडेंट्स मे बी आस्क्ड टू स्टाइल द हेडिंग कलर ऑफ अ टेबल। स्टूडेंट प्लीज बी रेडी फॉर दिस। इंप्रूव द वेब पेज डिजाइन, हमने बॉडी में लिखा बॉडी सिलेक्टर, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू लाइट येलो लिख दिया, ये मैंने CSS अप्लाई कर ली। इमेज में मैंने बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर दिया। राइट CSS इनसाइड HTML, अगर आपने CSS को HTML में लिखना हो तो आप कैसे लिखते हैं, ये देखिए आपने HTML स्टार्ट किया, HTML क्लोज कर दिया, हेड के अंदर आपने क्या लिखा, ये देखिए आपने स्टाइल कहां पे अप्लाई कर दिया, आपने इसके हेड के अंदर अप्लाई कर दिया, ये स्टाइल इसका एंड हो गया। स्टाइल से आपने स्टार्ट किया, स्टाइल से आपने क्लोज कर दिया। किसका आपने किया, हेडिंग 1 सिलेक्टर यूज किया और IMG सिलेक्टर यूज किया। इसमें आपने क्या कर दिया, CSS अप्लाई कर दी और कहां पे किया, हेड के पर। याद रखिए हेड में आपने CSS अप्लाई करनी है जिसको हम इनसाइड HTML CSS कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ टू स्कोर बेटर इन CSS क्वेश्चन। रिमेंबर द करेक्ट CSS फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज राइट सेमीकोलन आफ्टर प्रॉपर्टी वैल्यू, मैंने आपको कहा हुआ है कि सेमीकोलन लिखना है आपने, ये इधर सेमीकोलन लाजमी लिखना, फिर आपने उसकी वैल्यू लिखनी है, फिर आपने सेमीकोलन लगाना है। इसको हम कॉलन कहते हैं और इसको हम सेमीकोलन कहते हैं। यूज करेक्ट सेलेक्टर सच एज हेडिंग, इमेज और TH। केयरफुली राइट पिक्सल यूनिट्स लाइक 300 पिक्सल, PX 300, अगर आप 300 लिख देंगे ना, PX नहीं लिखेंगे तो वो आपके मार्क्स काटेगा। कीप CSS simple and relevant to the question. Fast track advice: practice color की इमेज साइज, टेबल हेडिंग, कलर एंड बेसिक बैकग्राउंड स्टाइल। आपने जो मैंने मेंशन किया इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये इसी में से आएगा। ठीक है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मुझे बताना कि आपने प्रैक्टिस की। ओके, कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक, अवॉइड दीज एरर्स इन द एग्जाम, फॉरगेटिंग पार्स इंट इन जावास्क्रिप्ट इनपुट, राइटिंग रॉन्ग वेरिएबल नेम, आपने वेरिएबल के नाम को रॉन्ग नहीं लिखना और नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करना। यूजिंग रॉन्ग लूप कंडीशन, फॉरगेटिंग HTML क्लोजिंग टैग्स, राइट रॉन्ग टेबल स्ट्रक्चर, फॉरगेटिंग CSS सेमीकोलन, मिसिंग कोटेशन मार्क्स इन HTML एट्रीब्यूट्स, स्मॉल सिंटैक्स मिस्टेक कैन रिड्यूस मार्क्स इवन व्हेन द कॉन्सेप्ट इज करेक्ट। ये आपने इंपॉर्टेंट लाजमी याद रखना।
जितने मैंने पॉइंट मेंशन किए प्लीज आपने ये लाजमी इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, और इनको आपने रॉन्ग नहीं लिखना, प्लीज प्लीज प्लीज। आपने कमेंट में लाजमी लिखना 3 मरतबा प्लीज प्लीज प्लीज, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर गुड मार्क्स, दैट इज योर फाइनल एग्जाम टिप्स। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन टाइप बिफोर राइटिंग द आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन में करना क्या है। सेकंड, फॉर जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफाई वेदर द क्वेश्चन नीड कंडीशन, लूप, लिस्ट और आउटपुट ट्रेसिंग। आपने देखना है कि उसमें आपने करना क्या है। HTML में राइट द कंप्लीट पेज स्ट्रक्चर क्लियरली। CSS कीप द कोड शॉर्ट एंड एग्जैक्ट। शो नीट एंड अवॉइड केयरलेस सिंटैक्स मिस्टेक्स। Practice the most repeated question types before the exam. Best strategy, practice remaining JavaScript programs, one complete HTML web page and basic CSS styling daily. अब तो आपके पास टाइम नहीं है, तो लेकिन इसके जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो आपने लास्ट में करने इसके। क्विक रीकैप, हमने क्या पढ़ा आज? रिमेनिंग इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर PBA और आउटपुट बेस्ड एंड डिबगिंग क्वेश्चंस, कंप्लीट HTML web page structure, import CSS styling example, exam tips for better performance. Next video, in the next fast track lecture, we will study flowchart, concept map and problem solving techniques for PBA. Student, this is your practical based assessment guideline और इसके बाद ये आपका सिलेबस है जिसमें वो बताया गया है कि HTML के पार्ट में वो ये चीजें कवर अप करेगा, ठीक है, CSS के पार्ट पे ये चीजें कवर होनी चाहिए और जावास्क्रिप्ट के लिए इस सिलेबस का कवर होना लाजमी है, जो कि मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हुई है आप देख ले, इसके प्लेलिस्ट में जाए और वहां से देख ले। अगर आपको किसी को भी कोई भी मुझसे मटेरियल चाहिए होगा तो देन यू कैन सेंड मी रिक्वेस्ट ऑन माय ईमेल, दैट इज माय ईमेल is shahzad.skystar@gmail.com। आप इसमें मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर मेरे पास कोई डेटा होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लो चार्ट में आपके ये टॉपिक कवर अप होने चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये पहला टॉपिक स्टार्ट करने लगा हूं, सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम। This is flowchart 1. Number 1 is scenario is a stationery shop sells 3 items to customer, develop an algorithm to calculate the total bill. मैंने इससे रिलेटेड जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए बताया कि आपने फ्लो चार्ट कैसे लिखना है कैसे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम नोट दिया गया जिसमें कहा गया दिस इज अ सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, स्टूडेंट शुड क्लियरली identify the values, perform the calculation and display the final result. तो इसका एल्गोरिथम लिखना है। जब आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है आपको वो फ्लो चार्ट का भी कह सकता है और एल्गोरिथम का भी कह सकता है, तो इसलिए मैंने आपको दोनों लिख के दे दिए कि जो भी वो कहेगा आपको कम से कम इस चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपने एल्गोरिथम कैसे लिखना है। तो इनपुट क्या होगी, इनपुट इसमें 3 नंबर्स होंगे, 3 आइटम्स होगी, 3 वैल्यूज होगी और टोटल इसके लिए आउटपुट के में क्या आएगा, आउटपुट इसका सम होगा या टोटल बिल होगा या रिजल्ट होगा। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट से हमने स्टार्ट करना है इसको। फिर इनपुट आइटम 1 की इनपुट लेंगे हम इनपुट के थ्रू, फिर आइटम 2 की वैल्यू लेंगे, आइटम 3 की वैल्यू इनपुट करवाएंगे और इस तरह टोटल हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट टोटल इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। आप इसमें सिर्फ ये भी कर सकते हो, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो जस्ट के टोटल इक्वल टू आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3, ठीक है, और कैलकुलेट भी लिख सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एल्गोरिदम होता है, ये प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स यूज नहीं होते। ये एल्गोरिदम आपको पता है कि एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। इसके बाद हम डिस्प्ले टोटल बिल कर लेंगे। अगर टोटल बिल को आपने डबल कोटेशन में लिखना है तो यहाँ पे डबल कोटेशन कर दीजिएगा और इसके बाद एंड कर देंगे। तो इसके फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, हमने ओवल सिंबल से हमने इसको स्टार्ट किया और ओवल के साथ ही हमने इसको एंड कर देते हैं।
ये हमने ओवल सिंबल से स्टार्ट किया, ओवल सिंबल से स्टार्ट किया और ओवल सिंबल के साथ हमने इसको एंड कर दिया। इनपुट फर्स्ट आइटम लिए और इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम्स यूज किया। ये सिंबल, ये इनपुट फर्स्ट इनपुट थी, ये सेकंड इनपुट थी, ये थर्ड इनपुट थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट टोटल किया, टोटल के लिए हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया यहाँ पे कैलकुलेट टोटल, और इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया आउटपुट के लिए। और जब आपको पता है कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल यूज किए जाते हैं, और जबकि प्रोसेसिंग के लिए जस्ट आप रेक्टेंगल यूज करते हो, और एंड के लिए और स्टार्ट के लिए ओवल शेप यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने एरो ड्रा कर लेता हूँ। स्टार्ट होगा, फिर इनपुट फर्स्ट आइटम होगी, फिर इसके बाद सेकंड आइटम होगी, फिर इसके बाद थर्ड आइटम होगी। इनपुट के बाद यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट इक्वल टू टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट करेगा? हम ये लिखेंगे कि टोटल इक्वल टू, इसमें लिखेंगे टोटल इक्वल टू आइटम वन प्लस आइटम टू प्लस आइटम टू प्लस आइटम 3। ये हम क्या कर लेंगे, इसमें टोटल कर देंगे और इसके बाद डिस्प्ले टोटल कर देंगे, और लास्ट में ये हमारा एंड आ गया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट मैंने लिख दिया, जो कि सिंपल फ्लो चार्ट है। तो इसके फ्लो चार्ट में हमने क्या किया, हमने ओवल सिंबल से हमने इसको स्टार्ट किया और ओवल के साथ ही हमने इसको एंड कर देते हैं। ये हमने ओवल सिंबल से स्टार्ट किया, ओवल सिंबल से स्टार्ट किया और ओवल सिंबल के साथ हमने इसको एंड कर दिया। इनपुट फर्स्ट आइटम लिए और इनपुट के लिए हमने पैरेललोग्राम्स यूज किया। ये सिंबल, ये इनपुट फर्स्ट इनपुट थी, ये सेकंड इनपुट थी, ये थर्ड इनपुट थी। इसके बाद हमने कैलकुलेट टोटल किया, टोटल के लिए हमने प्रोसेसिंग सिंबल यूज किया यहाँ पे कैलकुलेट टोटल, और इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर दिया आउटपुट के लिए। और जब आपको पता है कि इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम सिंबल यूज किए जाते हैं, और जबकि प्रोसेसिंग के लिए जस्ट आप रेक्टेंगल यूज करते हो, और एंड के लिए और स्टार्ट के लिए ओवल शेप यूज करते हैं। तो यहाँ से हमने एरो ड्रा कर लेता हूँ। स्टार्ट होगा, फिर इनपुट फर्स्ट आइटम होगी, फिर इसके बाद सेकंड आइटम होगी, फिर इसके बाद थर्ड आइटम होगी। इनपुट के बाद यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया जाएगा। कैलकुलेट इक्वल टू टोटल। टोटल कैसे कैलकुलेट करेगा? हम ये लिखेंगे कि टोटल इक्वल टू, इसमें लिखेंगे टोटल इक्वल टू आइटम वन प्लस आइटम टू प्लस आइटम टू प्लस आइटम 3। ये हम क्या कर लेंगे, इसमें टोटल कर देंगे और इसके बाद डिस्प्ले टोटल कर देंगे, और लास्ट में ये हमारा एंड आ गया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट मैंने लिख दिया, जो कि सिंपल फ्लो चार्ट है। ये इसका फ्लो चार्ट लिखा गया, जिसमें हमने क्या किया, स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम इनपुट लेंगे और इनपुट लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, और इसके बाद हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा। लेंथ को सपोज मैंने एल के साथ लिख दिया, या ऐसे ही लिखना है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम, चले मैं मुकम्मल कर लेता हूँ, कंप्लीट लिखता हूँ। लेंथ, फिर इसके बाद क्या करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ। मैंने लेंथ टाइम विड्थ लिखा, तो ये एरिया आपने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि हम यहां से इनपुट लेंगे लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। मैं लिखता हूं वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ, यहां से मैंने लेंथ ले ली, लेंथ टाइम विड्थ, यहां पे विड्थ आ गई, और टाइम्स हाइट। ये आपने सेम वेरिएबल लिख दिया, और इसके बाद क्या कर दिया, आपने इसको डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करते वक्त आपने एरिया को डिस्प्ले किया और वॉल्यूम को डिस्प्ले कर दिया, और बाद में आपने एंड कर दिया। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है, जिसमें आपने एरिया कैलकुलेट किया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया क्यूबॉइड का। जी, अब हम कंपैरिजन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। किसको? कंपैरिजन को। Flow chart number 3, that is comparison problem. Find the largest of 3 numbers. Scenario is, a teacher enters the marks of 3 students and want to identify the students
with the highest marks develop an algorithm to find the largest of three numbers. That is, the system should display system should do input three numbers, compare the numbers, determine the largest number, and display the largest number. Okay, what you will do, this is a comparison problem that uses decision making. Students should check whether A greater than B and A also greater than C. पहला स्टेप आपका स्टार्ट करने का, जो आपने स्टार्ट और एंड लाजमी लिखना होता है, अगर नहीं लिखेंगे तो आप एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। नेक्स्ट, इनपुट ए बी सी, आपने तीन वैल्यूज को इनपुट किया और इसके बाद आपने चेक किया इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, तो लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम ए। एल्स इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, देन लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल बी। नेक्स्ट, एल्स लार्जेस्ट इक्वल टू सी, अगर तीनों में से कोई कंडीशन भी, दोनों में से कोई कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो लार्जेस्ट कहां से वैल्यू लेगा, लार्जेस्ट सी से वैल्यू को गेट कर लेगा। देन आफ्टर दिस इट विल डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर और इसके बाद एंड हो जाएगा। तो हम इसका फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया और यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट ए बी सी किया और इसके बाद हमने डिसीजन सिंबल की तरफ मूव करके यहाँ पे हमने चेक किया कि इफ ए ग्रेटर देन बी से एंड ए ग्रेटर देन सी से, ए दोनों से ग्रेटर होगा, अगर होगा तो फिर लार्जेस्ट के पास क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम ए। ये होगा इस यस के केस में, और नो के केस में हम एक दूसरे डिसीजन सिंबल की तरफ मूव कर जाएंगे और यहां पे चेक करेंगे कि बी ग्रेटर देन सी है एंड बी ग्रेटर देन ए, दोनों से चेक करेंगे, सी से भी और ए से भी। अगर ये हो जाता है, ट्रू हो जाता है, इन केस ऑफ यस हम क्या करेंगे, इस तरफ मूव कर देंगे इन केस ऑफ यस, और इन केस ऑफ नो हम मूव कर देंगे लार्जेस्ट की तरफ, लार्जेस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम सी। ये इसका नो यस का केस होगा और ये इसका नो का केस होगा। ठीक है, तो जहां से भी वो लार्जेस्ट वैल्यू लेके आएगा इसके बाद हमने इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये लार्जेस्ट लेके आएगा तो इधर से हम डिस्प्ले कर देंगे इसको, अगर बी से वैल्यू लेके आएगा तो हम इधर से डिस्प्ले कर देंगे, फिर डिस्प्ले लार्जेस्ट नंबर होगा, और सी से आएगा तो हम इससे डिस्प्ले कर देंगे लार्जेस्ट वैल्यू को, और जब ये वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, एंड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट है in which you can find the largest number among of three numbers. Next topic, number 4, finding factorial of a number. Flow chart number 4, that is iterative problem, और इस प्रॉब्लम में हम फैक्टोरियल फाइंड आउट करेंगे किसी नंबर का। Scenario is a student enter a number and wants to calculate its factorial. Develop an algorithm to find the factorial of a number. The system should input a number n. वो एक नंबर n लेगा, initialize factorial, आपको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होगा, repeat multiplication from 1 to n and display the factorial. यहाँ पे वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, this is an iterative problem. Students should use repetition factorial 1 2 3 so on number n. हमने सबसे पहले इसका एल्गोरिथम लिखना है और स्टेप नंबर 1 that is start, नंबर 2 input n and set factorial 1, और इसके बाद set I equal to 1 से स्टार्ट करना है और हमने मूव करना है while I less than equal to n तक मूव करें, और इसमें हमने काम क्या करना है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम I से मल्टीप्लाई करना है और I इक्वल टू I प्लस 1 करना है, और इसके साथ हमने डिस्प्ले फैक्टोरियल कर देना और इसके साथ एंड हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली इसमें होना क्या है, ये देखिए, इसमें अगर इनपुट n में अगर यूजर एंटर करता है, सपोज 5 एंटर करता है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने एक्चुअली क्या करना है कि 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके प्रीवियस नंबर के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। आप
5 से लेके इस तरफ भी मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा, या 1 से लेके 5 की तरफ मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर सेम ही रहेगा। तो इसलिए हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने 1 से स्टार्ट किया। जब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है या 5 को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करते वक्त उसकी इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, जो कि मैंने इसमें क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ सपोज फैक्टोरियल इक्वल टू, मैं लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल टाइम्स आई, और आई आपको पता है कि लूप कंटेन कर रही है जो कि मूव करेगी आई की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, 1 2 3 4 5 तक मूव करेगी। 5 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने नंबर एन में क्या लिखा हुआ था, 5 लिखा, तो इसलिए मैंने यहां पे 5 लिखा। 5 इसके बाद आई मींस 1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, बाय डिफॉल्ट फैक्टोरियल में मैंने सेट क्या रखा हुआ, 1 रखा हुआ, ताकि 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 1 टाइम 1 आंसर 1 ही रहेगा। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता तो वो 0 होता, तो इसलिए जब सम करना होता है उस वक्त आप 0 लिया करो, और जब आपने मल्टीप्लाई करना होता है उसमें आप हेल्पिंग वेरिएबल में 1 लिया करो। 2 1s आर 2, यहाँ पे 2 आ गया क्योंकि फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू 1 पड़ी हुई थी। नेक्स्ट 3, अब फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है, 2, 3 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 6, 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल में प्रीवियस वैल्यू क्या पड़ी हुई है 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 24, और अब मैं क्या करूंगा, फैक्टोरियल वैल्यू 24 है इसमें, 24 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 120। तो ये फैक्टोरियल ऐसे काम करता है और ये मैंने इसका एल्गोरिदम लिखा हुआ है। अब हम इस चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की तरफ। जी हम फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हैं, और आपको पता है कि फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम सब के सब स्टार्ट से स्टार्ट होते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट किया ओवल शेप के साथ, और यहाँ पे इनपुट n नंबर लिया, और n नंबर के बाद हमने फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि हम उसको 1 से फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई कर सके। इसके बाद हमने i की वैल्यू सेट कर ली, जो कि i की वैल्यू कहां से सेट की, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, और फिर हमने चेक किया कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n तक है या नहीं। ये लेस देन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो और लेस देन इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट आप फ्लो चार्ट में लिख रहे हो तो इसमें जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को शो करना होता है। ठीक हो गया, तो देखें अगर तो वो लेस देन इक्वल टू n होगी तो क्या करे, फिर वो इसको यस के केस में क्या करेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। यस के केस में फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई होगा, और इसके बाद क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम मूव कर देंगे i प्लस 1 की तरफ, यानी कि आप मैं कहता हूं कि यहां से होता हुआ इधर से मैं गुजार सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे कर दिया इसको i प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया फैक्टोरियल से, और जब i प्लस 1 करेगा तो फिर वो चेक करेगा कि क्या वो i लेस देन इक्वल टू n तो नहीं है। अगर i लेस देन इक्वल टू n है तो फिर वो फैक्टोरियल फिर इस तरफ इस पाथ को यस वाले पाथ को कैलकुलेट करता रहेगा और i में एक का इंक्रीमेंट करता जाएगा जब तक वो n ना हो जाए। ठीक है, जब तक n हो जाए तो फिर भी उसने काम करना है, n प्लस 1 होगा तो फिर वो स्टॉप करेगा। इसके बाद नो के केस में वो इधर डिस्प्ले आ जाएगा, नो के केस में वो डिस्प्ले फैक्टोरियल कर देगा, और फैक्टोरियल डिस्प्ले करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसको एंड कर देंगे। तो ये एक फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट लिखा गया है। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव आंसर। द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट। अब हम सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। दिस इज फ्लो चार्ट नंबर 6, सर्चिंग प्रॉब्लम, search an element in a list. Scenario is a teacher has a list of numbers and want to check whether a given number exists in the list. The system should input the required number, compare it with the stored value, display whether the number is found or not found. What are the important points according to exam point of view? This is a searching problem. Students should understand that the program checks whether the required value matches the variable value or not.
First step is start, then input required number, then input stored numbers, and if required numbers equal to stored number. और स्टूडेंट याद रखें कि जब आप वेरिएबल्स लिखते हैं तो उनमें स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये इसलिए लिखे थे ताकि मैं आपको इस पॉइंट के बारे में बता सकूं। इफ रिक्वायर्ड अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू स्टोर्ड अंडरस्कोर नंबर्स, तो आप यहां से भी क्या कर ले, इसको स्पेस कर ले, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड नंबर्स इक्वल टू स्टोर्ड नंबर, देन डिस्प्ले नंबर फाउंड, एल्स डिस्प्ले नंबर नॉट फाउंड। तो इसके बाद ये एंड कर देंगे हम। फ्लो चार्ट को हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल से, और स्टार्ट सिंबल को आपको पता है कि ओवल शेप के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एरो लगा दिया। इनपुट रिक्वायर्ड अंडरस्कोर नम, ये हमने इनपुट लिया यूजर से, और इसके बाद हमने क्या कहा कि ये रिक्वायर्ड नंबर की अरे हमारे पास है, जो इनपुट स्टोर्ड नंबर, जो कि हमारे पास स्टोर्ड नंबर है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, हम चेक करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर और स्टोर्ड नंबर इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ रिक्वायर्ड अंडरस्कोर नम इक्वल टू स्टोर्ड अंडरस्कोर नम। अगर ये मैच कर जाता है तो ये क्या कर देगा, डिस्प्ले फाउंड, इसको डिस्प्ले कर देगा, किसको, फाउंड को, ठीक है। अगर नहीं करता, मैच नहीं करता, तो ये मैसेज दे देगा, ये होगा यस के केस में, ये होगा नो के केस में, डिस्प्ले नॉट फाउंड। और इसके बाद हम नॉट फाउंड को हम इधर एंड के साथ अटैच कर देंगे इस एरो को, और इधर भी हम क्या कर देंगे, यस के डिस्प्ले फाउंड के बाद हम इसको भी एंड कर देंगे। तो ये एक आपके पास कंप्लीट प्रोग्राम है फ्लो चार्ट का। स्टार्ट किया, रिक्वायर्ड नंबर, स्टोर्ड नंबर, चेक किया कि मैच हुआ या नहीं हुआ। अगर मैच होगा तो फाउंड हो जाएगा, मैच नहीं होगा तो नॉट फाउंड शो कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम सॉर्टिंग अ लिस्ट के फ्लो चार्ट को और एल्गोरिदम को देखेंगे। सबसे पहले हम सॉर्टिंग की लॉजिक को समझते हैं कि सॉर्टिंग होती कैसी। सपोज मेरे पास नंबर है 9, 9, 3, 12, 5, 10 और 4, ये मेरे पास नंबर है। तो मुझे क्या करना है, अब देखिए ये इंडेक्स नंबर इसके होंगे। सपोज ये ए की 0 लोकेशन पे स्टोर होगा, ये ए की 1 लोकेशन पे, फर्स्ट लोकेशन पे, ये ए की सेकंड लोकेशन पे, ये ए की थर्ड लोकेशन पे, और ये ए की 4 लोकेशन पे, और ये ए की 5th लोकेशन पे स्टोर होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा इसका, यानी कि मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं 0 का और A1 का कंपैरिजन कर रहा हूं, A ऑफ 1 का कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। यानी कहने का मकसद कि अगर मैं J की वैल्यू 0 रखूं तो इसमें मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि A ऑफ J और का कंपैरिजन कर रहा हूं A ऑफ J+1 के साथ, मैं ऐसा कह सकता हूं ना। तो जब कंपैरिजन करूंगा मैं देखूंगा कि 9 ग्रेटर देन 3 होगा तो स्वैप होगा, 3 इधर आ जाएगा, 9 इधर आ जाएगा, बाकी एलिमेंट मैं फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं। और इसके बाद नेक्स्ट मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इन दो एलिमेंट्स का, ठीक है। तो इस केस में यानी J की वैल्यू अब हो जाएगी 1, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J+1 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि A के सेकंड एलिमेंट का और A के फर्स्ट एलिमेंट का मैं
कंपैरिजन कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे ही देखे ना, तो यहाँ पे क्या देखें 9 ग्रेटर देन 12, तो ये स्वैप नहीं होगा। स्वैप उस सूरत में होगा जब ए ऑफ जे ग्रेटर देन होगा बी से। क्या मैं चेक कर रहा हूं, इनका मैं ग्रेटर देन चेक कर रहा हूं। ग्रेटर देन मीन 9 इधर रहेगा, 12 भी इधर रहेगा, 5 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। अब मैंने कंपैरिजन करना है 12 और 5 का, यानी 3 9 5 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 10 4, क्योंकि 12 ग्रेटर देन था। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं 12 और 10 का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। तो 10 इधर आ जाएगा, 12 इधर आ जाएगा और 4 इधर रहेगा, और बाकी 12 और 4 का कंपैरिजन करूंगा तो 12 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, और बाकी एलिमेंट एज इट इज मैं यहां पे ही लिख देता हूं। 3 9 5 10 आ गया। अब देखा जाए कि पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट 12 था और वो एक साइड पे चला गया। ठीक है, ये लास्ट वाले एलिमेंट पे चला गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं लूप लगाऊंगा तो अब देखिए यहां तक मैंने ये कहां तक चेक किया था, ये मैंने चेक किया था 0 से लेके, जबकि जे की वैल्यू, ये अगर जे की वैल्यू होती मेरी तो ये j+1 ऑटोमेटिकली हो जाना था, यानी कि जे को मैं यहां तक मैक्सिमम लेके आना था मैंने। ठीक है, यानी कि इस केस में अगर मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 होगी तो मैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास क्या होंगे 6 होंगे, तो मैं 5th एलिमेंट तक लेके आऊंगा, उसकी एक लेंथ कम तक लेके आऊंगा क्योंकि j+1 आगे मूव करेगा, मैं a ऑफ 5 तक नहीं लेके जा सकता। तो ये एक मेरा एक आइट्रेशन हो गया। ठीक है, अब सेकंड आइट्रेशन के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसी तरीके से फिर मैंने लिखता हूं 3 9 5, ये मेरा सेकंड आइट्रेशन, 10 4 और 12 आ गया। अब देखिए इसमें मैंने अब फिर मैंने वैसे ही इसको स्टार्ट करना सेकंड आइट्रेशन, जो कि मैंने इन दो का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। 3 ग्रेटर देन 9 नहीं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, 3 9 5 10 4 और 12 आ गया। अब देखा जाएगा 9 और 5 का कंपैरिजन करने जा रहा हूं, तो 9 इज ग्रेटर देन 5, यस, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा, इधर 10 था, इधर 4 था, इधर 12 था। ठीक है, अब देखिए 9 में देखूंगा 9 ग्रेटर देन 10, तो ये 9 ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो बाकी मैं इसको एज इट इज ही लिख देता हूं, 5 3 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 12 आ गया। अब कंपैरिजन होता जा रहा है, कंपैरिजन करने जा रहे हैं हम 10 और 4 का। 10 इज ग्रेटर देन 4, यस, 4 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, यहाँ पे 12 रह जाएगा, 9 5 5 3। अब दोबारा इसका कंपैरिजन होगा 10 और 12 का, तो वो उसी जगह पे रहेंगे, 10 इधर आ गया, 12 इधर आ गया, 4 9 5 3। अब देखा जाए तो पहले केस में, पहले आइट्रेशन में 12 जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट था वो राइट साइड पे चला गया, और सेकंड आइट्रेशन में जो सेकंड लार्जेस्ट नंबर था वो राइट साइड पे चला गया। इसी तरीके से इसका थर्ड आइट्रेशन भी कंप्लीट होगा, फिर फोर्थ आइट्रेशन होगा, फिर फिफ्थ आइट्रेशन होगा मैक्सिमम। तो ये आपके पास लिस्ट क्या हो जाएगी, सॉर्ट हो चुकी होगी। ठीक है, अब मैं इसका आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम दिखाता हूं कि आपने एल्गोरिथम कैसे लिखना है। ये देखिए हमने स्टार्ट किया, ये सिंबल हमारा स्टार्ट का हो गया, इनपुट अ लिस्ट, हमने इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर से फाइंड द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स n, हमने n एलिमेंट्स फाइंड किया, सेट इक्वल टू i इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि हमने i को 0 से लेके स्टार्ट करना था। रिपीट करना है जब तक i की वैल्यू लेस देन n-1 ना हो जाए। क्लियर, यानी कि अगर मेरे पास 6 एलिमेंट होंगे तो मैक्सिमम 5 आइट्रेशन में ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैंने i-1 n-1 किया। सेट j इक्वल टू 0, आपको पता है कि j ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, और j कैसे मूव कर रहा है, j लेस देन इक्वल टू n, लेस देन n मूव कर रहा है। लेस देन n लगाने का मकसद क्या है, लेस देन n लगाने का मकसद ये है कि अगर लेंथ उसकी लेंथ अगर 5 होगी, लेंथ अगर 5 होगी तो ये स्टार्ट करेगा 0 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, 4 के लिए। तो मैं 5 तक तो नहीं मूव करूंगा, इसलिए मैंने j क्या लिखा, n लिखा। फिर मैंने क्या लिखा, इसमें लिखा, मैंने लिखा कि i भी माइनस करते जाऊं। i का मतलब ये है कि पहले आइट्रेशन में लास्ट वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा, वहां तक हमने मूव नहीं करना। ठीक है, तो एक i एक मतलब चलेगा, तो n में से एक और कम कर दो। ठीक है,
फिर इसके बाद जब सेकंड टाइम आइट्रेशन चलेगा तो 2 एलिमेंट मेरे राइट पोजीशन पे आ चुके होंगे, उसको मुझे माइनस करना है। तो मैं जो आइट्रेशन की वैल्यू होगी उतना मैं माइनस करता जा रहा हूं। और -1 इसलिए मैंने करना है क्योंकि आपको पता है कि जे को और J+1 को हमने कंपैरिजन करना है। तो J+1 हमारा लास्ट वाला एलिमेंट होगा, तो ये हमारा J होगा, तो इसलिए हमने इसको -1 तक मूव करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी इसकी। इसके बाद वो चेक करेगा कि एलिमेंट पोजीशन J इज ग्रेटर देन एलिमेंट ऑफ पोजीशन J+1 से, तो स्वैप करेगा और इसके बाद इंक्रीमेंट बाय J+1 कर दे और इंक्रीमेंट I बाय 1 कर दे और डिस्प्ले द सॉर्टेड लिस्ट हमें इस तरीके से वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक हो गया। मैं अब इसको आपको एल्गोरिथम इसका फ्लो चार्ट लिख के दिखाता हूं। जी, इसके फ्लो चार्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, मैंने स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना है। मैंने यहां पे स्टार्ट सिंबल लिखा, मैंने लिखा स्टार्ट सिंबल, यहां से ये स्टार्ट करेगा। और इसके बाद स्टार्ट सिंबल के बाद हमने क्या कर लिया, इनपुट लिस्ट की लिस्ट इनपुट करनी थी हमने, इसलिए इसको क्या कर दिया, पैरेललोग्राम सिंबल से पैरेललोग्राम सिंबल से शो कर दिया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम करेंगे कि ए लिस्ट विल गेट वैल्यू फ्रॉम इनपुट लिस्ट फ्रॉम यूजर। ये हमारी इनपुट लिस्ट थी जो हमने यूजर से एंटर करवाई, और इसके बाद हमने करने के बाद हमने क्या किया, फौरन उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली। ये हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली। किसकी लेंथ कैलकुलेट की, अरे की। मैंने लिखा है n इक्वल टू लेंथ ऑफ ए, कि ए की लेंथ कैलकुलेट कर ले। अच्छा ये देखिए, आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए और ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों सिंबल कोरमैन की बुक में कोरमैन ने दोनों सिंबल यूज कर रहा है। कोरमैन पहले ये सिंबल यूज किया करता था, और जो न्यू बुक है ना कोरमैन की, जो कि एल्गोरिथम की एक्चुअली बुक होती है, उसमें वो अब इक्वल साइन यूज करता है। तो आप इक्वल साइन भी यूज कर सकते हो और लेफ्ट एरो भी यूज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। तो यहां पे हमने क्या दिया, आई की वैल्यू 0 कर दी। आई की वैल्यू मैंने क्या कर दी, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया। 0 से स्टार्ट करके हमने कहां तक मूव करना है, उसके n-1 तक। तो हमने मूव करना है, इसकी कंडीशन के लिए यहां पे कंडीशन लगा दी। कहां तक मूव करना हमने, आई लेस देन n-1, आई लेस देन n-1 तक मूव किया। हमने देखा कि अगर यस है, अगर यस है तो क्या करो, j इक्वल टू 0 कर दो। j इक्वल टू 0 कर दो, j इक्वल टू 0 कर दो। और j को हमने मूव करना है कहां तक, j को मूव करना है j लेस देन n-i-1 तक। अगर ये ट्रू है, इन केस ऑफ यस के, तो क्या करो, स्वैप करने से पहले इसकी कंपैरिजन चेक करना है। हमने क्या चेक करना है, यहां पे हम चेक करने जा रहे हैं कि ए ऑफ जे का एलिमेंट अगर ग्रेटर हो
ए ऑफ जे प्लस 1 के एलिमेंट से, ए जे ऑफ प्लस 1 के एलिमेंट से ग्रेटर हो तो यस के केस में हमने क्या कर देना, उनको स्वैप कर देना है। क्या करना हमने करना, स्वैप करना है। वैल्यू ऑफ ए ऑफ जे की वैल्यू स्वैप करें ए ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू के साथ, जैसा कि हमने उधर मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाया था। स्वैप कर दिया और स्वैप करने के बाद जे में एक का इंक्रीमेंट करें, जे इक्वल टू जे प्लस 1 करेगा तो वो एंड की तरफ मूव करेगा ना, जे प्लस 1 आ गया। और यहां से फिर मूव करते हुए कहा किसकी तरफ मूव करें, लूप दोबारा कंडीशन को चेक करें, इधर को कंडीशन को चेक करें और ऐसे ये मूव करता रहेगा। अगर ये नो होता है, जे लेस देन n माइनस 1 नहीं होता, इन केस ऑफ नो, ये तो यस के केस में था ना, ये ला नो के केस में क्या करें, नो के केस में आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दे। ओके, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दे और यहां से फिर हमने आई को भी इसके साथ चेक करना है। ये आइट्रेशन हमने दोबारा यहां पे ले गया नेस्टेड लूप के साथ, आई लेस देन एन माइनस 1 आ गया। ठीक है, ये देखिए हमने इसका यस लिखा था, इसका नो नहीं लिखा। नो के केस में क्या करें, नो के केस में वो इसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर दे। डिस्प्ले करना हमने आउटपुट सिंबल यूज कर लिया, डिस्प्ले ए ऑफ लिस्ट, फुल लिस्ट, और इसके बाद हमने क्या कर देना, इसको एंड कर देना। ये हमने एंड कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट था। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर ने ये नहीं करवाया, तो मैंने ये भी करवा दिया क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से मैंने नहीं करवा सका और मुझे कहीं जाना पड़ गया, जिस वजह से लेट हो गया हूं मैं। तो ये मैंने इसका एल्गोरिदम आपको, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम आपको बता दिया। ठीक है, ये मैंने फ्लो चार्ट लिख दिया। ठीक है, आप देख लें इसको, आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हैं अगर किसी को कुछ समझ ना हो तो। ठीक है, ये फुल फ्लो चार्ट है और इसके बाद ये मैंने आइट्रेशन यहाँ पे बनाए थे। आइट्रेशन क्योंकि मैंने हाफ आपको करके दे दिए थे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। और इसके बाद ये आ गया बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम जो कि सॉर्टिंग का है। ये फ्लो चार्ट देख लें, ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है इसका। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ जरा आपकी सहूलत के लिए, ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ओके। This is concept map based on different data structures like decision tree, graph, IPO tree and organizational chart. इन सब को कंबाइन करके हम किसी भी आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट मैप कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें फर्दर हम इसको कैसे एक्सप्लेन और एलेबोरेट करते हैं। टॉपिक, डिजाइन अ कॉन्सेप्ट मैप based on different data structures. A concept map is a visual representation of ideas and their relationship, जिसमें कोई आइडिया या इसके कोई रिलेशनशिप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। It helps students organize concept in a simple and understandable way. कौन सा वे है? सिंपल वे है और ये अंडरस्टैंडेबल वे है। इन पीबीए जो कि आपका प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट है, कॉन्सेप्ट मैप में बी डिजाइन यूजिंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर उसमें दिया गया, जैसा कि डिसीजन ट्री है, ये मैंने कहां से लिए, ये मैंने आपकी बुक से लिए और आपके मॉडल पेपर से, जो कि पीबीए का मॉडल पेपर है, वहां से ये पॉइंट्स लिए। डिसीजन ट्री आप यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, आईपीओ यूज करते हैं, ट्री और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट।
ये 5 पॉइंट, ये 5 कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट मैप को ड्रा करने के लिए। These structures help in explaining real life system and problem solving. अब हम देखते हैं कि इसमें एक हर किसी में क्या होता है। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री में क्या करते हैं, डिसीजन ट्री में हम कोई चीज डिसाइड करती है कि वेदर हम इस तरफ मूव करेंगे या इस तरफ मूव करेंगे, कोई डिसाइड कर रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास 2 पाथ होते हैं, एक पाथ सपोज नॉर्थ को जा रहा होगा और दूसरा पाथ साउथ को जा रहा होगा। A decision tree is a structure used to make decisions. It begins with a condition or question, और आपने किस तरफ मूव करना है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास कंडीशन कौन सी है। It begins with a condition or question. Different branches show different possible outcomes. Solution 1, student result. In case of student result, अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 के लिए ये क्या होगा, पास होगा। और अगर मार्क्स लेस देन 50 होंगे तो वो फेल होगा। तो ये हमारा सपोज एक डिसीजन ट्री है, हम देखेंगे कि हमने किस नोड की तरफ जाना है, पास की तरफ या फेल की तरफ। इट डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। इफ सेकंड क्वेश्चन, इसमें सिनेरियो में ये भी हो सकता है, जैसे मैं कहता हूं इफ इट इज रेनिंग तो टेक अम्ब्रेला, इफ इट इज नॉट रेनिंग गो नॉर्मली। तो ये एक सेकंड एग्जांपल है डिसीजन ट्री की, जिसमें हमने क्या करना होता है, एक कंडीशन को इवेल्युएट करना होता है और देन यू हैव टू डिसाइड वेदर यू कैन सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट और स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट और स्टेटमेंट नंबर 2। ग्राफ, अ ग्राफ शोज कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने इनके दरमियान कनेक्शंस को रिप्रेजेंट करना होता है, कनेक्शन को शो करना होता है। It consists of nodes just like points and edges like links. It useful for networks, route and relationship. ये इसकी एप्लीकेशन है ग्राफ की। और सिनेरियो 1 में क्या होगा, सपोज फ्रेंड नेटवर्क, ए बी से कनेक्ट है और बी सी से कनेक्ट है और सी दोनों के साथ कनेक्ट है। सिनेरियो नंबर 2, सिटी रोड मैप। Cities are represented as node, roads connecting cities are represented as edges. IPO definition is, IPO stands for input, process and output. It explains how a system works. Data is entered as input, process and then the output is produced. Scenario number 1, area of rectangle. Area of rectangle के लिए हम क्या लेंगे, हम सबसे पहले इनपुट लेंगे इन फॉर्म ऑफ लेंथ एंड विड्थ, देन प्रोसेस करेंगे लेंथ टाइम विड्थ एंड देन वी विल डिस्प्ले द आउटपुट। इसको हम आईपीओ कहते हैं, जो कि डिपेंड कर रहा होता है इनपुट पे, प्रोसेस पे और आउटपुट पे। It explains how a system works. Data is entered as input, processed and then output is produced. Scenario number 2, exam result. Input student marks, process calculate percentage and then output क्या आएगी, pass or fail। और inshallah my all students will get good marks, pass। This is the result। 4, that is tree। Definition is, a tree is a hierarchical structure जिसमें hierarchy पाई जाती है। It starts from a root node, इसमें एक रूट नोड होती है। ग्राफ और ट्री में सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो फर्क होता है कि ग्राफ में कोई स्पेसिफिक रूट नहीं होती, जबकि ट्री में कोई एक स्पेसिफिक रूट होती है। और ग्राफ में आप एक जगह से स्टार्ट करते हैं और उसी जगह पे वापस भी आ सकते हैं, यानी कि साइकिल होता है, जबकि ट्री में साइकिल नहीं होता। It starts from a root node, it branches into child node. It is useful for folders, family charts and menus. Scenario number 1, just like computer folder structure, root, आपके पास root folder होता है और उसके अंदर document folder आ जाते हैं और pictures का folder बना सकते हैं और further आप उसको सब folder 1, सब folder 2 में ड्रा कर सकते हैं। Scenario number 2, just family tree. A tree structure can also represent relationship in a family like grandparents, parents and children. Grandparents are the root of the family tree. Parents come under grandparents.
Children come under parents. Organizational chart definition. In organizational chart shows the hierarchy of people in an organization. Sometime हमें organization chart को show करना पड़ता है according to the hierarchy of the organization. It shows who is at the top and who works under whom. It is commonly used in schools, offices and companies. Like school structure, principal होता है, फिर teachers होते हैं, फिर students होते हैं. Scenario 2 company structure is like CEO, managers, employees. Comparison of the 5 structures. हमने ये 5 structures का हमने comparison करने जा रहे हैं. आप क्विक comparison देख लीजिए. Structure decision tree में क्या होता है? Decision making होती है. टू सिंपल सिनेरियो जिसमें हम स्टूडेंट रिजल्ट और वेदर कंडीशंस हमने देखी थी. ग्राफ में हमने क्या देखा था? शोइंग कनेक्शंस, फ्रेंड नेटवर्क था, सिटी रोड मैप था. आईपीओ में हमने शोइंग सिस्टम वर्किंग देखा था जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एग्जाम रिजल्ट देखा था. ट्री में हमने शोइंग हिरार्की देखी थी और इसमें एग्जांपल हमने यूज की थी फोल्डर स्ट्रक्चर और फैमिली ट्री. ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में शोइंग अथॉरिटी लेवल जस्ट लाइक स्कूल. एग्जांपल इज स्कूल स्ट्रक्चर और कंपनी स्ट्रक्चर. फाइनल कॉन्सेप्ट मैप में कॉन्सेप्ट मैप बेस्ड ऑन डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, ये एक सपोज मैंने बना दिया, कॉन्सेप्ट मैप बना दिया और कॉन्सेप्ट मैप को मैंने जो फाइनल जो मेन चीज होती है उसको मैंने सेंटर में रख दिया और जिसके साथ जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे, रिलेटेड एंटिटीज होगी और नोड्स होगी वो आपने साइड पे लेके उनके साथ उनको लिंक कर देना है. फर्दर हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं. How to draw a concept map in the exam? Very important. Step-by-step method. Number 1 is write the main concept in the center. आपने क्या करना? Main concept को आपने center में लिखना है. Add the related concept around it. Join them with lines or arrows. Keep label short and clear. Use simple example for better understanding. Make the diagram neat and balanced. How to answer in the exam? Number 1, write. Suppose example number 1 is write online fee payment system in the center. Add branches such as student ID, fee amount, payment method, payment confirmation, receipt, error message. Connect all concept map with line. तो आपने क्या करना है? इन सब के जितने भी है ना, इन सब को कॉन्सेप्ट को आपस में क्या कर देना है? इसको कनेक्ट कर देना है. फिर ऐड चेक्स करने, देखना है कि आप किस में कुछ चेक लगा सकते हैं. जस्ट लाइक इज द रिजल्ट, इज द स्टूडेंट आईडी वैलिड, इस पे आप चेक लगा सकते हो. और इज द पेमेंट सक्सेसफुल, इस पे आप चेक लगा सकते हो. ये सबसे पहले आपने ब्रांचेस बना के उसके बाद आपने देखना किस पे चेक लगा सकते हो. Keep the concept map neat, simple and balanced. और इसको हम concept map की एग्जांपल भी देखते हैं. इसको ड्रा कैसे करते हैं. Second example is hospital appointment booking. How to answer in the exam. अगर ये एग्जांपल आपको आ जाती है एग्जाम में तो आपने इसको कैसे आंसर करना है. Write hospital appointment booking in the center. Add branches such as, क्या आप कौन कौन से इसमें ब्रांचेस करेंगे? जैसे कि पेशेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्टर सिलेक्शन, डेट एंड टाइम, अवेलेबिलिटी चेक, कंफर्म अपॉइंटमेंट, रिजेक्ट रिक्वेस्ट. Connect all concept with lines. Add checks like is the doctor available, is the selected time slot free. Keep the connect map neat, simple and balanced. अब हम इसका कॉन्सेप्ट मैप देखते हैं. Example number 3, course registration system. How to answer in the exam. Write student course registration in the center. Add branches such as student login, course selection, course availability, credit limit, register course, reject request. Connect all concept with lines and check is the course available. Has the student exceeded the credit limit or not? Keep the connect map neat, simple and balanced. इसका भी हम concept map देखते हैं next. Example number 4, online food ordering system. How to answer in the exam.
Write online food ordering in the center. Add branches such as customer login, food selection, food availability, payment methods, confirm order, cancel order. Connect all concepts with lines and check, is the selected food available? Is the payment completed successfully? Keep the concept map neat, simple and balanced. नेक्स्ट हम इसका concept map देखते हैं. Final note. Best of luck for PBA preparation. Learn the meaning of each structure carefully. Practice both scenarios for each type. Use neat boxes, arrows, and labels. And keep your concept map simple, professional, and easy to understand. Best of luck for PBA preparation. एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए हमने क्या करना है, ऑनलाइन फी पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट मैप ड्रा करना है. तो हमने क्या करना है, राइट ऑनलाइन फी पेमेंट सिस्टम इन द सेंटर, जो कि हमने लिखा हुआ सेंटर में. फिर इसके बाद हमने ऐड रिलेटेड ब्रांचेस को हमने ऐड कर देना है. स्टूडेंट आईडी, फी, अमाउंट, इनके साथ हमने लिंक बना देना है. तो मैं इनके दरमियान लिंक बनाता हूं. मैं कहता हूं स्टूडेंट आईडी का लिंक इसके साथ लिंक बना दिया और फी अमाउंट का लिंक भी बना दिया मैंने. ठीक है, और इसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया स्टूडेंट आईडी के साथ, और इसको फिर मैंने फी पेमेंट को भी इसके साथ अटैच कर दिया. और इसके बाद हमने क्या करना है, स्टूडेंट आईडी वैलिड, इस पे हमने कंडीशन लगा दी और इसको हमने अटैच कर दिया इसके साथ. इसका लिंक है इसके साथ. पेमेंट सक्सेसफुल करते वक्त स्टूडेंट का आईडी होना लाजमी है. ठीक है, स्टूडेंट आईडी करेक्ट लिखेंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल होगी. ओके, और फिर पेमेंट मेथड के लिए भी पेमेंट का सक्सेसफुल होना लाजमी है. इसके साथ हमने अटैच कर दिया. ठीक है, और इसके साथ अगर सक्सेसफुल होगी तो क्या होगा कि तो फिर हमारे पास उसकी स्लिप जनरेट हो जाएगी. अगर नहीं होगी तो क्या होगा, हमारे पास एरर मैसेज शो हो जाएगा. तो ये एक मैंने कॉन्सेप्ट मैप आपको ड्रा करके दिखा दिया. ये नीचे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए थे. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग. तो हमने ऐसे ही क्या किया, राइट हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग इन द सेंटर. फिर हमने इसकी ब्रांचेस अटैच कर देनी है. ठीक है, और फिर हमने चेक लगाना है डॉक्टर अवेलेबिलिटी पे, और इज द selected time slot is free or not. And final action should be confirm appointment or reject request पे होगा. तो अब हम इसका मैप बनाते वक्त हम इसके क्या कर देते हैं, हम अब इनको लिंक करते हैं. जी, पेशेंट इंफॉर्मेशन, तो इसके साथ डायरेक्ट लिंक है. डॉक्टर सिलेक्शन भी इसमें लिंक है, और डेट एंड टाइम में भी हम क्या करेंगे, इसको लिंक करते हैं, और अवेलेबिलिटी में भी इसको लिंक करते हैं. ये हमने लिंक कर दिया. अब डॉक्टर और स्लॉट अवेलेबिलिटी मैंने इधर लिख दिया. अब डॉक्टर की सिलेक्शन के लिए अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके साथ उसकी अवेलेबिलिटी भी होना लाजमी है. ये अवेलेबिलिटी होना लाजमी है, और किस दिन होगी किस दिन नहीं होगी ये डिसाइड करेगा डेट एंड टाइम. ओके,
अगर हो जाती तो डॉक्टर की सिलेक्शन हो जाएगी, और इस तरीके से अगर स्लॉट अवेलेबल होगी तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन स्लॉट्स हो जाएंगी। ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपके पास क्या होगा, रिजेक्ट रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप है हॉस्पिटल अपॉइंटमेंट बुकिंग का। नेक्स्ट हमारे पास है कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। आप ऐसा करें कि इस वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें इसको बनाने की। अगर आप ट्राई कर लेंगे तो फिर बाद में मेरे साथ कंपेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर भी प्रोवाइड कर देता हूं। तो उसी तरीके से हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट लॉगिन तो हमने इसके साथ अटैच कर दिया, कोर्स सिलेक्शन को हमने इसके साथ अटैच कर लिया, और देखिए कोर्स अवेलेबिलिटी एंड क्रेडिट लिमिट को भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। चेक अवेलेबिलिटी को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, और ये इसके साथ हो गया चेक क्रेडिट लिमिट को चेक करने के लिए। फिर कोर्स की सिलेक्शन के लिए कोर्स की अवेलेबिलिटी होना बहुत लाजमी है, तो इसलिए मैंने इसका लिंक कर दिया जैसे मैंने डॉक्टर की सिलेक्शन करते वक्त किया था। और कोर्स की अवेलेबिलिटी भी हम इसके साथ लिंक करेंगे। अगर कोर्स अवेलेबल होगा तो रजिस्टर कोर्स हो जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो रिजेक्ट कोर्स हो जाएगा। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैप था कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। नेक्स्ट इसी तरीके से ये ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का है। तो आपने इन्हीं स्टेप्स को यूज करते हुए आपने क्या करना है, इसको करना है। अब तो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमर लॉगिन यहां पे लगा दिया, फूड की सिलेक्शन यहां पे कर दिया, और ये इसके साथ अटैच कर दिया, और ये इसके साथ अटैच कर दिया। पेमेंट मेथड, और पेमेंट मेथड के लिए यहां पे इसके साथ भी इसका चेक होना लाजमी है, और कोर्स और इसकी फूड सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है या नहीं तो इसका भी इसके साथ लिंक होना लाजमी है। इसके साथ हमने लिंक कर दिया, और फूड अवेलेबिलिटी का भी पहले चेक करेंगे तो देखेंगे हम, और इसके बाद कंफर्म ऑर्डर और कैंसिल ऑर्डर भी इसके साथ लिंक हो गए, इसके साथ लिंक हो गया, और इसके साथ लिंक हो गया। तो ये एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैप है अबाउट ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम का। This is Computer Science PBA 2026 Fast Track video number 3, that is Hardware, Software and Business Plan. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर टाइप्स एंड बिजनेस प्लान। Final fast track session, that is computer hardware devices, types of hardware components, classification of software, business plan preparation, final exam tips for PBA. These questions are mostly conceptual and can be answered quickly if students understand the categories clearly. Physical components of computer. Hardware refers to the physical parts of a computer system. These components allow user to interact with the computer. Hardware perform input, processing, storage, and output tasks. Without hardware, software cannot function. Examples include keyboard, monitor, CPU, printer, and hard disk. Hardware classification: input devices, output devices, processing devices, storage devices, communication devices,
Students should be able to identify devices and classify them correctly. Devices used to enter data, that is keyboard, mouse, scanner, microphone, webcam. Input devices send data from the user to the computer system. Devices used to display results, monitor, printer, speakers, projector. Output devices display processed information to the user. CPU, that is central processing unit. CPU perform calculation and logical operations. It controls all operations of the computer. It consists of ALU, that is arithmetic and logical unit, control unit, registers. Devices used to store data: hard disk, solid state drive, USB flash drive, memory card, optical disk. Storage devices keep data permanently or temporarily. Devices used for data communication: network interface card, modem, router, wireless adapter. These devices allow computers to communicate over networks. Programs that run on computer. Software is a set of programs that instruct the computer. It controls hardware operations. Software helps user perform tasks. Without software, hardware cannot perform meaningful tasks. Software classification: system software, application software. Students should understand the purpose of each type of software. System software: control computer hardware, operating system, device drivers, utility programs, language translators. These are all system softwares. System software manages computer resources and support application programs. Soft application software for user tasks like word processing software, spreadsheet software, educational software, entertainment software, business software, and application software help user perform specific tasks. And entrepreneurial idea. Students may be asked to prepare a business plan including company name, company slogan, executive summary, company objectives, product specification, target customers, online food delivery services, company name Smart Meal Delivery, slogan Fresh Food Fast, executive summary is provide healthy and affordable meals delivered quickly to students and professionals. Objective: provide affordable meal options, deliver food within 30 minutes. This is the objective. Product specification, business strategy, pricing, affordable meal plans, promotion, social media marketing, packaging, eco-friendly containers, delivery, fast delivery system, target customer, potential market, college students, office workers, busy professionals, urban residents. Final PBA preparation tips. How to secure better. Practice important JavaScript programs. Remember the HTML web page structures. Draw neat flowchart using correct symbols. Understand hardware and software categories. Prepare a simple business plan format. Practice writing answers clearly and neatly to secure full marks. What we covered in the fast track series: video 1 JavaScript basic, video 2 important JavaScript program, video 3 HTML CSS web page domain, वीडियो 2 और 3 को मैंने कंबाइन कर दिया था, 4 में फ्लो चार्ट एंड कॉन्सेप्ट मैप मैं ऑलरेडी कवर अप कर दिया था, और 5 में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्लान को मैंने कवर अप किया. Students who practice these topics carefully can perform well in the PBA examination, and best of luck. Prepare well for PBA, and please prepare for me and remember me in your prayers.